এবং এই মুহূর্তে ইসরোয়ে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন ইসরো চেয়ারম্যান এস সোমনাথ। সেই ছবি দেখাচ্ছি। এস সোমনাথকে কনগ্রাচুলেশন বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অভিবাদন জানাচ্ছেন, অভিনন্দন জানাচ্ছেন এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী পৌঁছেছেন ইসরোর সদর দপ্তর বেঙ্গালুরুতে। প্রধানমন্ত্রী দেখা করছেন একের পর এক ইসরোর বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে, স্পেস সায়েন্টিস্টদের সঙ্গে। তারা সবাই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দাঁড়িয়েছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন ইসরো চেয়ারম্যান এস সোমনাথ। একে অপরের সঙ্গে কথা বলছেন, অভিবাদন জানাচ্ছেন, অভিনন্দন জানাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। পিঠ চাপড়ে দিচ্ছেন ইসরো প্রধানের। ইসরো চেয়ারম্যানের পিঠ চাপড়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী, পুষ্পস্তবক দিলেন, সেই ছবি। চন্দ্রযান 3 এর সাফল্যের পর প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরেই প্রথমেই চলে গেলেন ইসরোর সদর দপ্তরে ব্যাঙ্গালোরে। সেই ছবি ফার্স্ট অ্যান্ড এক্সক্লুসিভ রিপাবলিক বাংলায়। প্রধানমন্ত্রী কথা বলছেন ইসরোর বিজ্ঞানীদের সঙ্গে, পিঠ চাপড়ে দিচ্ছেন ইসরো চেয়ারম্যান এস সোমনাথের। ভারতের ঐতিহাসিক চন্দ্রাভিযানের পর, চন্দ্র বিজয়ের পর প্রধানমন্ত্রী সরাসরি পৌঁছলেন ভারতের মাটিতে পা রেখেই প্রধানমন্ত্রী সরাসরি পৌঁছলেন ইসরোর সদর দপ্তরে। এর আগে বিমানবন্দর থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জয় বিজ্ঞান, জয় অনুসন্ধান। অর্থাৎ অনুসন্ধানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ভারত, সায়েন্টিফিক রিসার্চের দিক থেকে এগিয়ে যাচ্ছে ভারত। এবং তারপরেই প্রধানমন্ত্রী পৌঁছলেন ইসরোর সদর দপ্তরে। ইসরো বিজ্ঞানীরা রয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী তাদের সঙ্গে কথা বলছেন, সবাই হাসি মুখে রয়েছেন। চন্দ্রযান 3 এর সাফল্যের পর সকলেই খুশি, প্রধানমন্ত্রী খুশি, ইসরোর প্রত্যেক বিজ্ঞানী খুশি, প্রত্যেকটি দেশবাসী খুশি। এবং তাই যেন রিপ্রেজেন্ট করছে এই ছবিতে, এই চিত্রতে দেখা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী খুশি হয়েছেন এবং কথা বলছেন, পিঠ চাপড়ে দিচ্ছেন, পুষ্পস্তবক দিচ্ছেন ইসরো চেয়ারম্যানকে। একটু আগেই হ্যাল বিমানবন্দরে অবতরণ করেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে নেমেই প্রথমেই প্রধানমন্ত্রী বলেন, সারা দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, জয় বিজ্ঞান, জয় অনুসন্ধান। চন্দ্রযান 3 এর সাফল্য নিয়ে কথা বলছে যখন গোটা বিশ্বের প্রথম সারির দেশগুলো বিস্ময়সূচকভাবে তাকিয়ে রয়েছে ভারতবর্ষের এই চন্দ্রাভিযানের দিকে, আর তখনই প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরেই প্রথমেই চলে গেলেন ইসরোর সদর দপ্তরে। ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন এই মুহূর্তে পৃথিবীর অন্যতম স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনগুলির মধ্যে একটি, এবং সেখানেই পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী। ইসরো চেয়ারম্যান এস সোমনাথ, যার নেতৃত্বে গোটা অপারেশন হয়, গোটা চন্দ্রাভিযান সাফল্যময় হয়, সাফল্যমণ্ডিত করে তোলেন তিনি। এবং বাকি বিজ্ঞানীরা যারা এই কাজ করেন, তারা প্রত্যেকে, টিমের প্রত্যেক সদস্য রয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এই মুহূর্তে। সেই ছবি ফার্স্ট অন রিপাবলিক বাংলায়। প্রত্যেককে আলিঙ্গন করে অভিনন্দন জানাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। হয়তো বলছেন যে কাজ তারা করেছেন তার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসী গর্বিত। এবং প্রধানমন্ত্রীকে দেখাচ্ছেন, ইসরো প্রধান দেখাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীকে বিভিন্ন স্যাটেলাইট এবং সোলার প্যানেলগুলো, যে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে এই মুহূর্তে রোভার প্রজ্ঞান কাজ করছে, সেই মডেলগুলো প্রধানমন্ত্রীকে দেখাচ্ছেন ইসরোর চেয়ারম্যান এস সোমনাথ। সেই ছবি উঠে আসছে, প্রধানমন্ত্রীকে বোঝাচ্ছেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা কিভাবে এই গোটা প্রজেক্টে সাফল্য আসে। এবং প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে বোঝার চেষ্টা করছেন, শোনার চেষ্টা করছেন এই প্রজেক্টের ব্যাপারে, এই অভিযানের সম্পর্কে। দেখা যাচ্ছে কিভাবে বিজ্ঞানীরা প্রধানমন্ত্রীকে বোঝাচ্ছেন কোন কোন পর্যায়ে এই অভিযান করা হয়, এই অভিযান সফল হয় কোন কোন পর্যায়ে, তা বোঝাচ্ছেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা। এস সোমনাথ দেখাচ্ছেন ল্যান্ডার বিক্রমের মডেল, লাইফ সাইজ মডেল। এই মডেল রাখা রয়েছে ইসরোর সদর দপ্তরে। এই লাইফ সাইজ মডেল দেখাচ্ছেন এবং দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক সাইডে সোলার প্যানেল রয়েছে, স্ট্যান্ডগুলো দেখা যাচ্ছে। এই সমস্তটাই প্রধানমন্ত্রী বুঝে নিচ্ছেন এবং শুনছেন ইসরোর বিজ্ঞানীদের কাছে। এস সোমনাথ দেখাচ্ছেন কোন কোন পর্যায়ে, সেই ম্যাপ দেখাচ্ছেন, ম্যাপ। এবং প্রধানমন্ত্রী জিজ্ঞেস করছেন আরও ডিটেলসে। প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে, অত্যন্ত উৎসুক হয়ে শুনছেন গোটা প্রজেক্ট, গোটা অভিযান, গোটা মিশন সম্পর্কে। এবং দুটোই মডেল রাখা রয়েছে দেখা যাচ্ছে, দর্শকদের দেখাচ্ছি। একদিকে যেমন বিক্রমের মডেল রাখা রয়েছে, ল্যান্ডার বিক্রমের লাইফ সাইজ মডেল এটা,
विक्रम लैंडर मिलकर তারই সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে প্রজ্ঞানের মডেল। उठाएंगे और भारत के जो वैज्ञानिक हैं, इसरो के वैज्ञानिक इस पूरे डेटा को एनालाइज करेंगे कि पूरे এবং ইসরোর সদর দপ্তরের ভেতরে যে বিভিন্ন মডেল রাখা রয়েছে এই চন্দ্রযান 3, চন্দ্রযান 2, চন্দ্রযান 1 প্রত্যেক মিশনের মডেলগুলো কিন্তু রাখা রয়েছে ইসরোর সদর দপ্তরে, ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনের সদর দপ্তরে। সেই সমস্ত মডেল, সেই সমস্ত স্যাটেলাইট, সেই সমস্ত ল্যান্ডার, রোভার ইত্যাদি রাখা রয়েছে। তা নিয়ে ডিটেলসে বিশদে বোঝানো হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। প্রধানমন্ত্রী রীতিমতো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করছেন এই অংশের কি কাজ, এই অংশে এই যন্ত্র দিয়ে কি হয়, এবং ইসরোর চেয়ারম্যান এস সোমনাথ সমস্তটা বোঝাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীকে। সেই ছবি উঠে আসছে সরাসরি ইসরোর সদর দপ্তর থেকে। এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে যখন প্রধানমন্ত্রী ভারতের মাটিতে পা দেন, কিছুক্ষণ আগেই প্রধানমন্ত্রী ভারতে এসে পৌঁছন। ব্রিক্স সামিট ছিল, প্রধানমন্ত্রী সেখানে ছিলেন সাউথ আফ্রিকায়, তারপরে গ্রিসে, এবং তারপরে ভারতে এসে প্রথমেই প্রধানমন্ত্রী অবতরণ করেন বেঙ্গালুরুতে হ্যাল বিমানবন্দরে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী বলেন তিনি কতটা গর্বিত, গোটা দেশের বাসিন্দারা কতটা গর্বিত ইসরোর এই সাফল্যর কারণে। তারপরে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী চলে যান ইসরোর সদর দপ্তরে, সেখানে দেখা করেন এস সোমনাথের সঙ্গে ইসরো চেয়ারম্যান। তার পিঠ চাপড়ে দেন, প্রত্যেক বিজ্ঞানীকে আলিঙ্গন করেন, সায়েন্টিস্টদের সঙ্গে কথা বলেন। এবং এখন এই মুহূর্তে লাইভ ছবি উঠে আসছে ইসরোর সদর দপ্তর থেকে মিশন চন্দ্রযান 3 সফল হওয়ার পরে এই চন্দ্রযান 3 মিশনের সঙ্গে জড়িত যতগুলো অংশ রয়েছে, যন্ত্র রয়েছে, রোভার রয়েছে, ল্যান্ডার রয়েছে, প্রত্যেকটির লাইফ সাইজ মডেল প্রধানমন্ত্রী বুঝে নিচ্ছেন, দেখে নিচ্ছেন, উৎসুক হয়ে দেখছেন। এবং এস চেয়ারম্যান সমস্তটা বোঝাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীকে কি করে এই মিশন হয়, কোন কোন পর্যায়ে হয়। মিশনটি মূলত 3টি ভাগে ভাগ করা ছিল, এর আগেও আমরা বারবার সেটা বলেছি। সেই 3টে পর্যায়, প্রাথমিকভাবে কনস্ট্রাকশন ফেজ, তারপর প্রিপারেটরি ফেজ, তারপর লঞ্চিং ফেজ, এই প্রত্যেকটা পর্যায়কে প্রধানমন্ত্রীকে বোঝাচ্ছেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা। এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে পেছন দিকে দেখা যাচ্ছে ল্যান্ডার বিক্রম দাঁড়িয়ে আছে। এই লাইফ সাইজ ল্যান্ডার মডেল বিক্রমই কিন্তু রয়েছে চন্দ্রপৃষ্ঠে এই মুহূর্তে। দর্শকরা যা দেখতে পাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর ব্যাকগ্রাউন্ডে, সেই বিক্রম কিন্তু এখন রয়েছে চাঁদের পৃষ্ঠে। সেই লাইফ সাইজ মডেল রাখা রয়েছে ইসরোতে। এবং প্রধানমন্ত্রী জিজ্ঞেস করছেন কি কি অংশ, এই যন্ত্র কি কাজ করে, কিভাবে এগুলো সক্রিয় হয়। সোলার প্যানেলগুলো দেখা যাচ্ছে। এর আগে চন্দ্রযান 2 এর ল্যান্ডারের দুটো দিকে সোলার প্যানেল ছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে ইসরোর বিজ্ঞানীরা যা জানিয়েছেন ল্যান্ডার বিক্রম চন্দ্রযান 3 এর যে ল্যান্ডার তার প্রত্যেক দিকে সোলার প্যানেল রয়েছে, অর্থাৎ সূর্যের আলো পড়লেই কাজ করবে বিক্রম। সেগুলো প্রধানমন্ত্রীকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন ইসরোর বিজ্ঞানী এস সোমনাথ, ইসরো চেয়ারম্যান এস সোমনাথ। এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী একটু আগেই বার্তা দেন জয় বিজ্ঞান, জয় অনুসন্ধান। প্রধানমন্ত্রী বলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন জয় কিষান, জয় জওয়ান, জয় বিজ্ঞান বলেছিলেন। এখন ভারত আরও এক পা এগিয়েছে, জয় অনুসন্ধান, অর্থাৎ সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কি কি আছে, কোথায় আছে, অনুসন্ধান করার শক্তি ভারতের এই মুহূর্তে আছে, যা অন্য কোনো দেশের নেই। ভারতই প্রথম দেশ যে চন্দ্রের সাউথ পোল বা দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি অবতরণ করে। গোটা বিশ্ব যখন এই নিয়ে কথা বলছে তখন এই মিশনের যারা হিরো, যারা নায়ক, সেই বিজ্ঞানীদের সঙ্গে দেখা করছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বিমানবন্দরে নেমে বলেন আমি যখন এই চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করেছিল বিক্রম তখন আমি দেশে ছিলাম না, তখনই আমি ভেবে নিয়েছিলাম যে দেশে এসেই সবার আগে যে কাজটা আমি করব তা হলো ইসরোর সদর দপ্তরে গিয়ে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে দেখা করব, এমনটাই বলেন প্রধানমন্ত্রী। একটু আগেই বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে হ্যাল বিমানবন্দরে নেবে এমনটাই বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি ছিলেন সাউথ আফ্রিকায়, ভার্চুয়ালি যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী। সেই দৃশ্য সবার মনে আছে। একদিকে চন্দ্রপৃষ্ঠে নামছে বিক্রম, আরেকদিকে প্রধানমন্ত্রী ভারতের জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন দেশবাসীকে। সেই সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সাউথ আফ্রিকায়। সরাসরি সাউথ আফ্রিকা থেকে গ্রিস এবং গ্রিস থেকে ভারতে নেমেই প্রধানমন্ত্রী গেলেন ইসরোর সদর দপ্তরে। সেখানে ল্যান্ডার বিক্রমের লাইফ সাইজ মডেল দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বোঝাচ্ছেন এই মিশন সম্পর্কে ইসরো চেয়ারম্যান।
একের পর এক ছবি উঠে আসছে ইসরো সদর দপ্তর থেকে। প্রধানমন্ত্রী ইসরো কন্ট্রোল রুম MOX মিশন অপারেশন কমপ্লেক্স, সেখানে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রত্যেকে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন অভিবাদন জানাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীকে। প্রধানমন্ত্রীও সবাইকে সবার দিকে তাকিয়ে হাসছেন, হাততালি দিচ্ছেন, অভিনন্দন জানাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীকে পেয়ে প্রত্যেক বিজ্ঞানী কতটা খুশি এবং প্রধানমন্ত্রী সেখানে কতটা খুশি হয়েছেন তা স্পষ্ট প্রত্যেকের। On 23rd of this month, August, we made history by landing on the moon. Chandrayaan-3 landed softly on the moon. We were very fortunate to have our Honorable Prime Minister, though away, he joined us live to greet us, to congratulate us, to be with us. And thank you so much for your presence during such a historic day. Softly on the moon. We were very fortunate to have our Honorable Prime Minister, though away, he joined us live to greet us, to congratulate us, to be with us. And thank you so much for your presence during such a historic day. You promised us that you will come and meet us on that day. And you are here. And thank you so much for your gracious presence today amongst us. And today we look forward to your words of wisdom, your vision, your expectation from us. And for all those words, we are at ears to you. Honorable प्रधानमंत्री जी, आपको मेरा स्वागत इसरो में, ये कंट्रोल सेंटर में। थैंक यू सर। So we are seeing the ramp being deployed now. This is animation. We'll see the real. Next solar panel of the ramp of the rover Pragyan opens. Then it establishes communication with the lander. Then it slowly comes out. Now the rover has already moved 12 meters. So we'll see the onboard camera visuals. So this is a camera mounted on the side just before the ramp deployment. So what you're seeing is the deployment of the ramp with the rover mounted on that. The solar panel of the rover is deployed already and it is getting released and moving towards moon, sir. So these images take a lot of time to come to Earth because data rate and processing. So now this is the early morning image of today morning. The rover is almost out of the field of view. It will turn in the day today and look at the lander and take more pictures. Thank you.
नमस्कार फ्रेंड्स। आप सभी के बीच आकर आज एक अलग ही खुशी महसूस कर रहा हूं। शायद ऐसी खुशी बहुत रेयर ओकेजन होते हैं जब तन मन खुशियों से भर गया हो। और व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वो बेसब्री हावी हो जाती है। इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। इतनी बेसब्री, मैं साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस का कार्यक्रम था तो वहां चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा हुआ था। लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं आप लोगों के साथ अन्याय कर देता हूं। बेसब्री मेरी और मुसीबत आपकी। इतनी सवेरे सवेरे आप सभी को और इतना और टाइम, लेकिन बस मन कर रहा था जाऊं आपको नमन करूं। आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। इंडिया
India is on the moon. We have our national pride placed on the moon. हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी दुनिया में रोशनी की किरण फैला देता है। इक्कीसवीं सदी में यही भारत दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक एक सेकंड बार बार घूम रहा है। जब टचडाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहां इसरो सेंटर में, पूरे देश में लोग उछल पड़े, वो दृश्य कौन भूल सकता है। कुछ स्मृतियां अमर हो जाती है। वो पल अमर हो गया। वो पल इस सदी के सबसे प्रेरणादायी क्षणों में से एक है। हर भारतीय को लग रहा था कि विजय उसकी अपनी है। खुद महसूस करता था। हर भारतीय को लग रहा था कि जैसे वो खुद एक बड़े एग्जाम में पास हो गया है। आज भी बधाइयां दी जा रही हैं, संदेश दिए जा रहे हैं, और ये सब मुमकिन बनाया है आप सबने, आपने। देश के मेरे वैज्ञानिकों ने ये मुमकिन बनाया है। मैं आप सबका जितना गुणगान करूं वो कम है। मैं आपकी जितनी सराहना करूं वो कम है। साथियों, मैंने वो फोटो देखी जिसमें हमारे मून लैंडर ने अंगद की तरह चंद्रमा पर मजबूती से अपना पैर जमाया हुआ है। एक तरफ विक्रम का विश्वास है तो दूसरी तरफ प्रज्ञान का पराक्रम है। हमारा प्रज्ञान लगातार चंद्रमा पर अपने पद चिन्ह छोड़ रहा है। अलग अलग कैमरों से ली गई जो तस्वीरें अभी रिलीज हुई और मुझे देखने का सौभाग्य मिला, वो अद्भुत है।
मानव सभ्यता में पहली बार धरती के लाखों साल के इतिहास में पहली बार उस स्थान की तस्वीर मानव अपनी आंखों से देख रहा है और ये तस्वीर दुनिया को दिखाने का काम भारत ने किया है। आप सभी वैज्ञानिकों ने किया है। आज पूरी दुनिया भारत की साइंटिफिक स्पिरिट का, हमारी टेक्नोलॉजी का और हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट का लोहा मान चुकी है। चंद्रयान महाअभियान सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की सफलता है। हमारा मिशन जिस क्षेत्र को एक्सप्लोर करेगा उससे सभी देशों के लिए मून मिशंस के नए रास्ते खुलेंगे। ये चांद के रहस्य को तो खोलेगा ही, साथ ही धरती की चुनौतियों के समाधान में भी मदद करेगा। आपकी इस सफलता के लिए मैं एक बार फिर सभी वैज्ञानिकों को, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और चंद्रयान महाअभियान से जुड़े सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। हमारे ऋषियों ने कहा है, येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे
कुण्वन्ति वित्तेषु धीरः यत्पूर्व यक्ष्मन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। अर्थात जिस मन से हम कर्तव्य कर्म करते हैं, विचार और विज्ञान को गति देते हैं, और जो सबके भीतर मौजूद है, वो मन शुभ और कल्याणकारी संकल्पों से जुड़े। मन के इन शुभ संकल्पों को पूरा करने के लिए शक्ति का आशीर्वाद अनिवार्य है, और ये शक्ति हमारी नारी शक्ति है। हमारी माताएं बहनें हैं। हमारे यहां कहा गया है, सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी। अर्थात निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति ही है। आप सबने देखा है, चंद्रयान 3 में देश ने, हमारी महिला वैज्ञानिकों ने, देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट सदियों तक भारत के इस वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन का साक्षी बनेगा। ये शिव शक्ति पॉइंट आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा कि हमें विज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए ही करना है। मानवता का कल्याण, यही हमारा सुप्रीम कमिटमेंट है। साथियों, एक और नामकरण काफी समय से लंबित है। 4 साल पहले जब चंद्रयान 2 चंद्रमा के पास तक पहुंचा था, जहां उसके पदचिन्ह पड़े थे, तब ये प्रस्ताव था कि उस स्थान का नाम तय किया जाए। लेकिन उन परिस्थितियों में निर्णय लेने के स्थान पर हमने प्रण लिया कि जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर पहुंचेगा, तब हम दोनों पॉइंट का नाम एक साथ रखेंगे। और आज मुझे लगता है कि जब हर घर तिरंगा है, जब हर मन तिरंगा है और चांद पर भी तिरंगा है, तो तिरंगा के सिवाय चंद्रयान 2 से जुड़े उस स्थान को और क्या नाम दिया जा सकता है। इसलिए चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा।
ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सफलता मिलकर के ही रहती है। यानी मैं फिर दोहरा रहा हूं, चंद्रयान 2 के पद चिन्ह जहां है वो स्थान आज से तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। और जहां पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर पहुंचा है वो स्थान आज से शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। साथियों, आज भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन चुका है जिसने चंद्रमा की सतह को छुआ है। ये सफलता तब और अधिक बड़ी हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि भारत ने अपनी यात्रा कहां से शुरू की थी। एक समय था जब भारत के पास जरूरी तकनीक नहीं थी, सहयोग भी नहीं था। हमारी गिनती थर्ड वर्ल्ड यानी थर्ड रॉ में खड़े देशों में होती थी। थर्ड वर्ल्ड थर्ड रॉ में खड़े हुए लोगों में होती थी। वहां से निकलकर आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक भारत की गिनती पहली पंक्ति यानी फर्स्ट रॉ में खड़े देशों में हो रही है। यानी थर्ड रॉ से फर्स्ट रॉ तक इस यात्रा में इसरो जैसी संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आपने आज मेक इन इंडिया को चांद तक पहुंचा दिया है। मेरे परिवारजनों, मैं आज आपके बीच आकर विशेष तौर पर देशवासियों को आपकी मेहनत के बारे में बताना चाहता हूं। जो मैं बातें बता रहा हूं वो आपके लिए नई नहीं है, लेकिन आपने जो किया है, जो साधना की है, वो देशवासियों को भी पता होना चाहिए। भारत के दक्षिण हिस्से से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक चंद्रयान की ये यात्रा आसान नहीं थी। मून लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने इसरो की रिसर्च फैसिलिटी में आर्टिफिशियल मून तक बना डाला। इस आर्टिफिशियल मून पर विक्रम लैंडर को अलग अलग तरीके से सरफेस पर उतारकर उसका टेस्ट किया गया था। अब इतने सारे एग्जाम देकर
हमारा मून लैंडर वहां गया है तो उसे सक्सेस मिलनी ही मिलनी थी। साथियों, आज जब मैं देखता हूं कि भारत की युवा पीढ़ी साइंस को लेकर, स्पेस को लेकर, इनोवेशन को लेकर इतनी एनर्जी से भरी हुई है, तो उसके पीछे हमारे ऐसे ही स्पेस मिशंस की सफलता है। मंगलयान की सफलता ने, चंद्रयान की सफलता ने, गगनयान की तैयारी ने देश की युवा पीढ़ी को एक नया मिजाज दे दिया है। आज भारत के छोटे छोटे बच्चों की जुबान पर चंद्रयान का नाम है। आज भारत का हर बच्चा आप वैज्ञानिकों में अपना भविष्य देख रहा है। इसलिए आपकी उपलब्धि सिर्फ ये नहीं है कि आपने चांद पर तिरंगा लहराया, लेकिन आपने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और वो उपलब्धि है भारत की पूरी पीढ़ी को जागृत करने की, उसे नई ऊर्जा देने की। आपने एक पूरी पीढ़ी पर अपनी इस सफलता की गहरी छाप छोड़ी है। आज से कोई भी बच्चा रात में जब चंद्रमा को देखेगा तो उसको विश्वास होगा कि जिस हौसले से मेरा देश चांद पर पहुंचा है, वही हौसला, वही जज्बा उस बच्चे के भीतर भी है, उस युवा के भीतर भी है। आज आपने भारत के बच्चों में आकांक्षाओं के जो बीज बोए हैं, कल वो वट वृक्ष बनेंगे और विकसित भारत की नींव बनेंगे। हमारी युवा पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए एक और निर्णय लिया गया है। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा, हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करता रहेगा। मेरे परिवारजनों, आप भी जानते हैं कि स्पेस सेक्टर का जो सामर्थ्य है वो सैटेलाइट लॉन्च करने या अंतरिक्ष की खोज से कहीं ज्यादा बड़ा है। स्पेस सेक्टर की एक बहुत बड़ी ताकत है
जो मैं देखता हूं वो है ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ गवर्नेंस। आज देश में स्पेस एप्लीकेशंस को गवर्नेंस के हर पहलू से जोड़ने की दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ है। आप लोगों ने जब मुझे प्रधानमंत्री के रूप में काम का दायित्व दिया तो प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स की स्पेस साइंटिस्ट के साथ एक वर्कशॉप करवाई थी और इसका मकसद ये था कि गवर्नेंस में, शासन व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी लाने में स्पेस सेक्टर की ताकत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कैसे करें। तब किरण जी शायद हम लोगों के साथ काम करते थे। इसी का नतीजा था जब देश ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, शौचालयों का निर्माण शुरू किया, करोड़ों घरों को बनाने का अभियान चलाया। तो इन सब के मॉनिटरिंग के लिए, उसकी प्रगति के लिए स्पेस साइंस ने बहुत मदद की। आज देश में दूर दराज के इलाके में एजुकेशन, कम्युनिकेशन और हेल्थ सर्विसेज पहुंचाने में स्पेस सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। इन दिनों आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त जो जिले जिले में अमृत सरोवर बन रहे हैं, उसका भी टैगिंग, उसके भी मॉनिटरिंग स्पेस के द्वारा ही हो रही है। बिना स्पेस टेक्नोलॉजी के हम टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन की कल्पना तक नहीं कर सकते। स्पेस साइंस ने देश के रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में भी बहुत मदद की है। हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को ताकत देने में, मौसम का अनुमान लगाने में स्पेस सेक्टर जो मदद करता है वो देश का हर किसान जानता है। आज वो देख लेता है अपने मोबाइल पर अगले सप्ताह मौसम का क्या हाल है। देश के करोड़ों मछुआरों को आज नाविक सिस्टम से जो सटीक जानकारी मिल रही है वो भी आप ही की देन है। आज जब देश में बाढ़ आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप आता है, तो हालात की गंभीरता का पता लगाने में आप सबसे पहले आगे आते हैं। जब साइक्लोन आता है तो हमारी सैटेलाइट्स उसका सारा रूट बताती हैं, सारी टाइमिंग बताती हैं और लोगों की जान भी बचती है, संपत्ति भी बचती है। और सिर्फ साइक्लोन के कारण जो संपत्ति बचती है ना, उसका अगर जोड़ लगा दें तो आज स्पेस का जो खर्चा है उससे वो ज्यादा हो जाता था। हमारे पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान का आधार भी स्पेस टेक्नोलॉजी ही है। और आज दुनिया भारत के इस गतिशक्ति प्लेटफॉर्म का अध्ययन कर रही है कि प्लानिंग और मैनेजमेंट में ये प्लेटफॉर्म कितना उपयोगी हो सकता है। इससे प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग, एजुकेशन और मॉनिटरिंग में काफी मदद मिल रही है। समय के साथ बढ़ता हुआ स्पेस एप्लीकेशन का ये दायरा हमारे युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ा रहा है, अवसर बढ़ा रहा है। और इसलिए आज मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आपके यहां से जो रिटायर्ड लोग हैं वे इसमें काफी मदद कर सकते हैं।
अब ये मत बोलिएगा कि इतनी सुबह सुबह मोदी जी यहां आए और कुछ काम भी दे करके जा रहे हैं। साथियों, मैं चाहूंगा कि इसरो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय और राज्य सरकारें मिलकर गवर्नेंस में स्पेस टेक्नोलॉजी पर एक नेशनल हैकाथॉन का आयोजन करें। इस हैकाथॉन में ज्यादा से ज्यादा युवा, ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी, ज्यादा से ज्यादा नौजवान वो शामिल हो, जुड़े। मुझे विश्वास है ये नेशनल हैकाथॉन हमारी गवर्नेंस को और प्रभावी बनाएगा, देशवासियों को मॉडर्न सॉल्यूशंस देगा। और साथियों, आपके अलावा मैं अपनी युवा पीढ़ी को एक और टास्क अलग से देना चाहता हूं। और होमवर्क के दिए बिना बच्चों को काम करने का मजा नहीं आता है। आप सब जानते हैं कि भारत वो देश है जिसने हजारों वर्ष पूर्व ही धरती के बाहर अनंत अंतरिक्ष में देखना शुरू कर दिया था। हमारे यहां सदियों पहले अनुसंधान परंपरा के आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और भास्कराचार्य जैसे ऋषि मनीषी हुए थे। जब धरती के आकार को लेकर भ्रम था, तब आर्यभट्ट ने अपने महान ग्रंथ आर्यभट्टीय में धरती के गोलाकार होने के बारे में विस्तार से लिखा था। उन्होंने एक्सिस पर पृथ्वी की रोटेशन और उसकी परिधि की गणना भी लिख दी थी। इसी तरह सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में भी कहा गया है, सर्वत्रैव महिगोले, सर्वत्रैव महिगोले स्वस्थानम उपरि स्थितम मन्यन्ते खेयतो गोलस तस्य क्व ऊर्ध्वं क्व वादः। अर्थात पृथ्वी पर कुछ लोग अपनी जगह को सबसे ऊपर मानते हैं, लेकिन ये गोलाकार पृथ्वी तो आकाश में स्थित है, उसमें ऊपर और नीचे क्या हो सकता है, ये उस समय लिखा गया था। ये तो मैंने सिर्फ एक श्लोक बताया है। ऐसी अनगिनत रचनाएं हमारे पूर्वजों ने लिखी हुई है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक दूसरे के बीच में आने से ग्रहण की जानकारी हमारे कितने ही ग्रंथों में लिखी हुई पाई जाती है। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों के आकार की गणनाएं, उनके मूवमेंट से जुड़ी जानकारी भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। हमने ग्रहों और उपग्रहों की गति को लेकर इतना सूक्ष्म गणनाएं करने की वो काबिलियत हासिल की थी कि हमारे यहां सैकड़ों वर्ष आगे के पंचांग यानी कैलेंडर्स बनाए जाते थे। इसलिए मैं इससे जुड़ा एक टास्क अपनी नई पीढ़ी को देना चाहता हूं, स्कूल कॉलेज के बच्चों को देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि भारत के शास्त्रों में जो खगोलीय सूत्र है, उन्हें साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए नए सिरे से उनके अध्ययन के लिए नई पीढ़ी आगे आए।
ये हमारी विरासत के लिए भी जरूरी है और विज्ञान के लिए भी जरूरी है। आज जो स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उन पर एक तरह से ये दोहरा दायित्व है। भारत के पास विज्ञान के ज्ञान का जो खजाना है वो गुलामी के लंबे कालखंड में दब गया है, छिप गया है। आजादी के इस अमृत काल में हमें इस खजाने को भी खंगालना है, उस पर रिसर्च करनी है और दुनिया को भी बताना है। दूसरा दायित्व ये कि हमारी युवा पीढ़ी को आज के आधुनिक विज्ञान, आधुनिक टेक्नोलॉजी को नए आयाम देने हैं। समंदर की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाई तक, आसमान की ऊंचाई से लेकर अंतरिक्ष की गहराई तक आपके लिए करने के लिए बहुत कुछ है। आप डीप अर्थ को भी देखिए और साथ ही डीप सी को भी एक्सप्लोर करिए। आप नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बनाइए और साथ ही जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी अपना सिक्का जमाइए। भारत में आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार लगातार खुल रहे हैं। 21वीं सदी के इस कालखंड में जो देश साइंस और टेक्नोलॉजी में बढ़त बना ले जाएगा, वो देश सबसे आगे बढ़ जाएगा। साथियों, आज बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगले कुछ वर्षों में भारत की स्पेस इंडस्ट्री $8 बिलियन से बढ़कर $16 बिलियन की हो जाएगी। सरकार भी इस बात की गंभीरता को समझते हुए स्पेस सेक्टर में लगातार रिफॉर्म कर रही है। हमारे युवा भी कमर कसकर तैयार है। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि पिछले 4 साल में स्पेस सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप्स की संख्या 4 से बढ़कर करीब करीब 150 हो गई है। हम कल्पना कर सकते हैं कि अनंत आकाश में कितनी अनंत संभावनाएं भारत का इंतजार कर रही हैं। वैसे कुछ दिन बाद 1 सितंबर से MyGov हमारे चंद्रयान मिशन को लेकर बहुत बड़ा क्विज कंपटीशन लॉन्च करने वाला है। हमारे देश के स्टूडेंट्स इससे भी शुरुआत कर सकते हैं। मैं देश भर के स्टूडेंट से आग्रह करूंगा कि आप सभी बड़ी संख्या में इससे जुड़े। मेरे परिवारजनों, देश की भावी पीढ़ी को आपका मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। आप जो इतने सारे इंपॉर्टेंट मिशंस पर काम कर रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ी ही आगे ले जाने वाली है। आप उन सभी के रोल मॉडल हैं। आपकी रिसर्च और आपकी वर्षों की तपस्या, मेहनत ने साबित किया है कि आप जो ठान लेते हैं वो आप करके दिखाते हैं। देश के लोगों का विश्वास आप पर है।
और विश्वास कमाना छोटी बात नहीं होती है दोस्तों। आपने अपनी तपस्या से विश्वास कमाया है। देश के लोगों का आशीर्वाद आप पर है। इसी आशीर्वाद की ताकत से, देश के प्रति इसी समर्पण भाव से भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनेगा। और मैं आपके बीच बड़े विश्वास के साथ बताता हूं, इनोवेशन की हमारी यही स्पिरिट ही 2047 में विकसित भारत के सपने को साकार करेगी। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबके दर्शन करके पावन हुआ हूं। देशवासी गौरव से भरे हुए हैं। सपने बहुत तेजी से संकल्प बन रहे हैं और आपका परिश्रम उन संकल्प को सिद्धि के तक ले जाने के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन रहा है। आपको जितनी बधाई दूं कम है, जितना अभिनंदन करूं कम है। मेरी तरफ से करोड़ों करोड़ों देशवासियों की तरफ से, दुनिया भर की साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से अनेक अनेक धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। বিদেশের মাটি থেকে ভারতের সাফল্যের সাক্ষী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, আর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে উপভোগ করেছিলেন সেই সাফল্যের মুহূর্ত। তবে এবার সেখান থেকেই একেবারে ইসরোর বিজ্ঞানীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পর সরাসরি ভারতে ফিরে সোজা ইসরো দপ্তরে প্রধানমন্ত্রী তিনি চলে যান এবং চন্দ্রযান 3-এর অবতরণ স্থলের নাম এখন থেকে যে শিব শক্তি তাও কিন্তু সেখান থেকেই ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবং অবশ্যই এই চন্দ্রযান 3-এর সাফল্যের জন্য ইসরোর বিজ্ঞানীদের জন্য অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেখুন যে এই মুহূর্তে প্রত্যেকে অভিনন্দন জানানো এবং হাত দেখিয়ে তিনি প্রত্যেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন, প্রত্যেকে বিজ্ঞানীদেরকে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। চন্দ্রযান 3-এর সাফল্যে নেপথ্যে থাকা ইসরোর বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করলেন ইসরোর কার্যালয়ে উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার পর।